ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି MCQs ତାକୁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ MCQs ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆମର ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ତୁମମାନେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବି। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବା। ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଆଲଜିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆଲଜିନିକ୍ ଏସିଡ୍ କାହାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ରେ ଥାଏ? ବ୍ୟାସିଲିରିଓଫାଇସି, ଭିକ୍ସୋଫାଇସି, ଜାନ୍ଥୋଫାଇସି, ଲାମିନାରିଆ। करेक्ट आंसर कौन हम? चैट बॉक्स रे कमेंट करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर होची ऑप्शन डी, लामिनारिया। लामिनारिया रो सेल वॉल रे अल्जेनिक एसिड प्रेजेंट थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ग्रुप लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए भितर को ग्रुप रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होई न थाए? क्लोरोफाइटा, जांथोफाइटा, रोडोफाइटा, सियानोफाइटा। कमेंट करो चैट बॉक्स रे A, B, C और D। व्हिच ग्रुप लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर D इज द राइट आंसर, सियानोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 3, डाईएटोमाइसियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। डाईएटोमाइसियस अर्थ कोथुर ऑब्टेन्ड हुए? कोथुर हमें पाई परिबा? जांथोफाइसी, बैसिलिरोफाइसी, क्रिजोफाइसी, रेडोफाइसी। कोथुर हमें डायटोमाइसियस अर्थ पाई परिबा? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैसिलिरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च हमें कोठु पाई परिबा? ब्लू ग्रीन आल्जी, फंजाई, ग्रीन आल्जी, रेड आल्जी। फ्लोरिडियन स्टार्च कोथुर मिले? ब्लू ग्रीन आल्जी, फंजाई, ग्रीन आल्जी, रेड आल्जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पिला माने। रेड आल्जी इज द राइट आंसर। समस्त बहुत बढ़िया उत्तर करछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर इज प्रोड्यूस्ड बाय। अगर केउठार मिली थाए? आल्जी, फंजाई, ब्लू ग्रीन आल्जी, बैक्टेरिया। अगर केउथिर मिली थाए? चैट बॉक्स रे कमेंट करो A, B, C और D। आल्जी, फंजाई, ब्लू ग्रीन आल्जी, बैक्टेरिया। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आल्जी। क्वेश्चन नंबर 6, an algae which is rich in protein is। को आल्जी रे प्रचुर परिमाण रे प्रोटीन थाए? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, नॉस्टक, क्लोरेला। निम्न मध्यरु केउ आल्जी रे प्रचुर परिमाण रे प्रोटीन थाए? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, नॉस्टक, क्लोरेला। Yes, very good. Option D is the right answer, chlorella. Question number 7, specialized cells called heterocyst are present in। heterocyst एमानक मध्यरु केउथिरे हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट थाए? डिनोफ्लाजेलेट्स, क्रेजोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, सियानोबैक्टीरिया। निम्न मध्यरु केउथिरे हेटेरोसिस्ट एक स्वतंत्र कोष जहाँकि तार ना होचे हेटेरोसिस्ट सेटा प्रेजेंट थाए? आंसर कौन हम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सियानोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, an eukaryote which causes disease comes under। एमानक मध्यरु देखो यूकैरियोट किए जे कि डिजीज करूछ? which causes disease comes under monorans, fungi, virus, none of this। Very good, option B is the right answer, fungi। Next question number 9, Deuteromycetes are called imperfect fungi due to। Deuteromycetes मानंकु imperfect fungi काहेकि कुआ जाए? Due to lack of cell wall, lack of sexual reproduction, lack of asexual reproduction,
ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ସ କ'ଣ ଅଭାବ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ୟୁଟେରୋମାଇସିଟିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ନଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଫଞ୍ଜାଇ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ବେସିଡିଓସ୍ପୋର୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ ଅନ୍ ଦ ଟିପ୍ ଅଫ୍। ବେସିଡିଓସ୍ପୋର୍ସ କାହାର ଟିପ୍ ବା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବର୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି? ମାଇସେଲିୟମ୍, ଅସ୍କୋକାର୍ପ, ଫ୍ଲାଜେଲା, ଆପ୍ଲାନୋସ୍ପୋର। Very good, बहुत बढ़िया। Mycelium is the right answer. Option A, mycelium is the right answer. Next question, question number 11. Short twisted strands of hypha which serves as anchor for lichens. ताको कौन कहा जाए? Mycelium, resins, rods, rhizoids. Short twisted strands, twisted माने मोड़ी की अच्छी, छोटो मोड़ी की दिवा strand of hypha, hypha रा छोटो मोड़ी की दिवा strand which serves as anchor for lichen, lichen से लगी थाए तो ताको कौन कहा जाए? Mycelium, rhizomes, roots, rhizoids. Write the correct answer in the comment box, in the chat box, in the comment section. Very good. Option B is the right answer. Rhizomes. Next question, question number 12. Edible part of mushroom is, mushroom रो को पार्ट टाको तुम खाई परिबो? Edible part of mushroom is basidiocarp, primary mycelium, fungal hypha, basidiospore. Very good. Option A is the right answer. Basidiocarp. Basidiocarp टा होची mushroom रो edible part. Question number 13. Moss peat is used as a packing material for sending flowers and living plants to distant places because मॉस पीट्रे एमती कौन थाए जहाँफल ताको पैकिंग मटेरियल हिसाब से व्यवहार करा जाए, जो थे कि फूल एवं जीवंत गछ को दूर जगह को पठा जाई पारे। कौन से स्पेशल फीचर अच्छी? इट सर्व्स एज ए डिसइनफेक्टेंट, इट इज इजिली अवेलेबल, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। इधर कौन स्पेशल फीचर अच्छी? इट सर्व्स एज ए डिसइनफेक्टेंट, इट इज इजिली अवेलेबल, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। The correct answer is option C. It is hygroscopic. यार जल धारण क्षमता अच्छी। Next question, question number 14. In a moss, the sporophyte, moss रे sporophyte टा कौन करे? Manufactures food for itself as well as for the gametophyte, is partially parasitic on the gametophyte, produces gametes that give rise to the gametophyte, arise from a spore produced from the gametophyte. In a moss, the sporophyte, moss रे sporophyte टा कौन करे? Manufactures food for itself as well as for the gametophyte, is partially parasitic on the gametophyte, produces gametes that give rise to the gametophyte, arises from a spore produced from the gametophyte. Right answer कौन होगा? Very good. Option B is the right answer. Is partially parasitic on the gametophyte. Question number 15. जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द, तो जिम्नोस्पर्म आउ ग्रास भितर कौन फरक अच्छी? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स, लैक ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स, एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब। जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द, तो ग्रासेस रे कौन अच्छी जोटा जिम्नोस्पर्म नहीं? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स, lack of xylem tracheids, absence of pollen tube. Very good, बहुत बढ़िया। Option A is the right answer. Formation of endosperm before fertilization. Next question. Question number 16. In the prothallus of a vascular cryptogam, the antherozoids and eggs mature at different times as a result. गोटे प्रोथालस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम रे थिबा गोटे प्रोथालस रे आंथरोजॉइड आउ एग अलग अलग समय रे मैच्योर होती, ता फल रे कोन हुए? एज ए रिजल्ट देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज अपोमिक्टिक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, देयर इज नो चेंज इन सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन. राइट आंसर कोन हबो?
वेरी गुड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड जेहेतु अलग अलग समय मैच्योर होती तेणु सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो पारि न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर स्पोर्स डिसेमिनेशन इन सम लिवर ओट्स इज एडेड बाय लिवर ओट्र जो स्पोर डिसेमिनेशन होता है केतेक लिवर ओट्रे स्पोर डिसेमिनेशन क्या द्वारा होता है केमिति होता है इज एडेड बाय कहार साहाय्य होता है इंडोसियम कैलिप्ट्रा पेरिस्टोम टीथ इलाटास आउथर ऑप्शन गुड़ा कौन शुण इंडोसियम कैलिप्ट्रा पेरिस्टोम टीथ इलाटास चैट बॉक्स कमेंट करो ए बी सी डी वेरी गुड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इलाटास नेक्स्ट क्वेश्चन इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलेन चैम्बर रिप्रेजेंट्स जिम्नोस्पर्म रे पोलेन चैम्बर कौन रिप्रेजेंट करुची ए cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination an opening in the megagametophyte through which the pollen tube approaches the egg the microsporangium in which pollen grains develop a cell in the pollen grain in which the sperms are formed आउथरे क्वेश्चन पढ़ुची बुझा चेष्टा कर इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलेन चैम्बर रिप्रेजेंट्स जिम्नोस्पर्म रे पोलेन चैम्बरटा कौन क्या रिप्रेजेंट करुच्ची ए कैविटी इन द ओव्यूल इन व्हिच पोलेन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पोलिनेशन आउथरे पढ़ुची शुण ए कैविटी इन द ओव्यूल इन व्हिच पोलेन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पोलिनेशन पोलिनेशन पर सेठी जो कैविटी रे जाइकी ओव्यूल जो कैविटी जो पोलेन ग्रेन गुड़ा स्टोर होची है सेकेंड होची एन ओपनिंग इन द मेगागैमेटोफाइट थ्रू व्हिच द पोलेन ट्यूब अप्रोचेस द एग मेगागैमेटोफाइट रे गोटे ओपनिंग जो पोलेन ट्यूब अप्रोच करची एग को थर्ड पॉइंट द माइक्रोस्पोरांजियम इन व्हिच पोलेन ग्रेन्स डेवलप एटा होची माइक्रोस्पोरांजियम जो कि पोलेन ग्रेन टा डेवलप होची नेक्स्ट होची ए सेल इन द पोलेन ग्रेन इन व्हिच द स्पर्म्स आर फॉर्मड पोलेन ग्रेन गोटे सेल जो स्पर्म तैयारी होची आंसर कौन हम वेरी गुड आंसर होची ऑप्शन सी द माइक्रोस्पोरांजियम इन व्हिच पोलेन ग्रेन्स डेवलप क्वेश्चन नंबर 19 डोमिनेंट स्टेज इन ब्रायोफाइटा इज ब्रायोफाइटार डोमिनेंट स्टेज को कौन कहा जाए स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस आंसर होची आउथरे क्वेश्चन पढ़ुची शुण चार्ट बॉक्स रे कमेंट करो ठीक आंसर टा ए बी सी डी डोमिनेंट स्टेज इन ब्रायोफाइटा इज स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस ए भीतर को स्टेज टा ब्रायोफाइटा रे डोमिनेंट वेरी गुड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गैमेटोफाइटिक स्टेज टा ब्रायोफाइटा रे डोमिनेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज ब्रायोफाइटा मानकू प्लांट किंगडम रो एम्फीबियंस कहा जाए कहीं बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर्स वाटर देयर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड दे हैव ट्रैकिड्स ऑल ऑफ द एबव कोटा ठीक आंसर हम बहुत बढ़िया वेरी गुड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देयर रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर्स वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 निम्न मध्यरु केउ ब्रायोफाइटा इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट स्पाग्नम रिसिया आंथोसेरस मर्कांसिया आउथर ऑप्शन कहूँ स्पाग्नम रिसिया आंथोसेरस मर्कांसिया वेरी गुड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्पाग्नम क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल जीवंत जीवाश्म निम्न मध्यरु केउंटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल एविस गिंको बाइलोवा इफेड्रा टेक्सास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गिंको बाइलोवा क्वेश्चन नंबर 23 ब्रायोफाइट्स हैव प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम ब्रायोफाइट्स गुड़िक केउंतरे इवॉल्व होइछंती ब्लू ग्रीन आल्जी ब्लू आल्जी रेड आल्जी ब्रायोफाइट्स हैव प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम ब्रायोफाइट्स केउंटू इवॉल्व होइछंती कोटू सृष्टि होइछंती ब्लू ग्रीन आल्जी ग्रीन आल्जी ब्लू आल्जी रेड आल्जी
Very good. Option B is the right answer. Green algae. Question number 24. Which of the following is called amphibians of plant kingdom? Already discuss କରି ସାରିଛେ comment कर दियो आंसर कौन हम which of the following is called amphibians of plant kingdom? Bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, algae. Very good. Option A is the right answer. Bryophytes. Next question. Question number 25. Gymnosperms bear seeds but lack fruits because they lack. Gymnosperm मानकर bear seeds से मंजी थाए किंतु फल न थाए but lack fruits because they lack तांकर कौन अभाव थाए माने जिम्नोस्पर्म मानकर जहाँ को आम कहे नग्नबीजी तो नग्नबीजी जो उद्भिद गुड़िक अच्छा से मंजी थाए बियर सीड्स बट लैक फ्रुट फल न थाए से कौन अभाव थाए जहाँफल फल न थाए से कटिलेडन एम्ब्रियो ओभारी ओव्यूल वेरी गुड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर से ओभारी न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन जर्मिनेशन मॉस स्पोर्स प्रोड्यूस जर्मिनेशन हेले मॉस स्पोर कौन प्रोड्यूस हुए थेका प्रोटोनेमा आनुलस प्रोथालस जर्मिनेशन हेले मॉस स्पोर कौन प्रोड्यूस हुए थेका प्रोटोनेमा आनुलस प्रोथालस वेरी गुड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्रोटोनेमा तैयारी हुए जर्मिनेशन हेले मॉस स्पोर प्रोटोनेमा प्रोड्यूस हुए प्रोड्यूस माने उत्पादित हुए प्रोटोनेमा से बाहर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेटोफाइटिक टिश्यू इन फ्यूनारिया एमानक मध्यरु निम्न मध्यरु केउटी गैमेटोफाइटिक टिश्यू इन फ्यूनारिया फ्यूनारी रे थिबा गैमेटोफाइटिक टिश्यू अपर्कुलम अपोफाइसिस आनुलस कैलिप्ट्रा वेरी गुड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कैलिप्ट्रा हम ठीक उत्तर कैलिप्ट्रा हूँ फ्यूनारिया रे थिबा गैमेटोफाइटिक टिश्यू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज जिम्नोस्पर्म रे थिबा एंडोस्पर्मटा को प्रकार रो हाप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म रे थिबा एंडोस्पर्मटा कोन हबो हाप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड वेरी गुड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हाप्लॉइड हबो क्वेश्चन नंबर 29 साइकस ओव्यूल इज साइकस रो ओव्यूलटा कोन हबो अनाट्रोपस यूनिटेग्मिक अनाट्रोमस बाइटेग्मिक ऑर्थोट्रोपस यूनिटेग्मिक ऑर्थोट्रोपस बाइटेग्मिक साइकस रो ओव्यूलटा केमिति हबो अनाट्रोपस यूनिटेग्मिक अनाट्रोपस बाइटेग्मिक ऑर्थोट्रोपस यूनिटेग्मिक ऑर्थोट्रोपस बाइटेग्मिक चैट बॉक्स रे कमेंट करो ए बी सी डी अ वेरी गुड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑर्थोट्रोपस यूनिटेग्मिक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन फंगाल सेल इज फंगाल सेल रे साधारणतः केउ प्रकार खाद्य संचित होई रही है स्टार्च सुक्रोज और ग्लूकोज ग्लाइकोजेन फंगाल सेल आंसर हम ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पायरोनॉइड्स आर द सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरोनॉइड्स रे कौन तैयारी होता है प्रोटीन्स फैट्स स्टार्च एंजाइम पायरोनॉइड्स आर द सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फैट्स स्टार्च एंजाइम आंसर हम ऑप्शन सी स्टार्च नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्न प्लांट इज नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर्न प्लांट इज हाप्लॉइड गैमेटोफाइट हाप्लॉइड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड गैमेटोफाइट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को ऑप्शन टा ठीक हबो फॉर्न प्लांट इज हाप्लॉइड गैमेटोफाइट हाप्लॉइड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड गैमेटोफाइट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आंसर हबो ऑप्शन वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट नेक्स्ट क्वेश्चन साइकस इज साइकसटा कोन मोनोइशियस डायोइशियस बाइसेक्सुअल असेक्सुअल साइकसटा कोन हो साइकस इज मोनोइशियस डायोइशियस बाइसेक्सुअल असेक्सुअल आंसर अब ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डायोइशियस क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी with non-flagellated gametes which of the following shows isogamies with non-flagellated gametes तर गैमेट रे फ्लाजेला न थाए सार्गासम एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स पायरोगाइरा आउतर ऑप्शन उडा कहि दोची सार्गासम एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स पायरोगाइरा
Very good. Option D is the right answer. Spirogyra. Question number 35. Male gametophyte with least number of cell is present in. कोउथरे मेल गैमेटोफाइट रे बहुत कम परिमाण सेल थाए. टेरिस, फ्यूनारिया, लिलियम, पाइनस. आउथर ऑप्शन को टेरिस, फ्यूनारिया, लिलियम, पाइनस. वेरी गुड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लिलियम. लिलियम रो मेल गैमेटोफाइट रे बहुत कम परिमाण सेल थाए. लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट. द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द लाइव सेशन. तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा. Now which of the following gametophyte is not independent free living? निम्न मध्यरु केउ गैमेटोफाइट टी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नुहे? फ्यूनारिया, मार्कांसिया, टेरिस, पाइनस. आउथरे कहूची निम्न मध्यरु केउटी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नुहे? फ्यूनारिया, मार्कांसिया, टेरिस, पाइनस. वेरी गुड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो पिला माने लाइव सेशन रे आज आम प्लांट किंगडम चैप्टर को कंप्लीट कले. नेक्स्ट लाइव सेशन रे एनिमल किंगडम रो एमसीक्यूज डिस्कशन हम. तो धैर्यर सहित एवं एक्टिवली बहुत सुंदर भाव में तुम लाइव क्लास रे पार्टिसिपेट करते तुम बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.